We start with the definition of computer. Computer is an electronic machine used to solve different problems according to the set of instructions given to it. So this means that computer is according to this definition, computer is the electronic machine used to solve different problems according to set of instructions given to it. It means you will have to give instructions to computer set of instructions. The set of instructions is called program. So computer will be provided the program and data, and then this electronic machine will perform various operations on data according to these set of instructions provided to this machine. So this data will be converted into some information, and then this information will be provided to user as an output. So data will be provided as an input to this electronic machine, and computer is, or this electronic machine is supposed to perform various operations on this data according to this set of instructions. After performing various operations, data will be transformed into information, and then this information will be provided to user as an output. So computer can be defined as the electronic machine used to solve various problems or to solve different problems. So for every problem you will have to provide set of instructions. So the set of instructions, as the problem varies, set of instructions will also vary. So when the problem will be changed, you will have to change the set of instructions. For different problems, you will have to provide different set of instructions to computer. In the same way, for different problems, data will also be changed. So this is data for problem number 1, and these are the set of instructions that we have developed for. These are the set of instructions that we have developed for problem 1, and these are the set of instructions that we have developed for problem 2. This is data set for problem 1, and this is data set for problem number 2. So for different problems, data will be different, set of instructions will be different, and this machine, this electronic machine, has the capability to solve different problems according to the set of instructions given to it, and then convert the data into information that will be provided as output to end users. So this is the definition of a computer. This is not formal definition, but this was the one way to define the computers. Basically, the word computer has been derived a verb from the verb. Compute is a verb, and from this verb another word
has been derived, that is the computer. This is noun. So with the word compute, so computer has been derived from this base word compute. Compute is the base word, and when you put an inflection or, then this will become computer. So the computer has been derived from the word compute, and the compute means to calculate. So you can say that computer is a fast calculating machine, for various problems. So this can be defined as a fast calculating machine for solving various problems, as the word compute means to calculate. So we can say that computer is a device. This is a real world object. Computer is a real world object, and this real world object is posed for fast calculations or to provide the solution of various problems at a very fast rate. So there are different ways to define computer. Dear students, basic purpose of the computer is not only to calculate. This is not the sole purpose. This is not the sole calculations. This is to perform calculations. This is not the sole purpose of the computer. Basically, computer is a very broad machine, and it has very broad purpose. So we need some formal definition for the computer. So how we will formally define computer? The formal definition of computer is an electronic machine used for the manipulation and representation of data. An electronic machine used for manipulation and representation of data. In this definition, I have used three very important words. One is the manipulation, the second one is representation, and the third one is data. So computer has to perform, the basic aim of computer is to perform manipulations and representations. These are the two main tasks that the computer has to perform, that the computer is supposed to perform. One is manipulation and the other one is representation. And for this purpose, you will provide data to electronic machine.
So, computer will be provided data, and then computer will perform manipulations on this data. Now, how computer will perform the manipulation on this data? For this purpose, again, you will have to provide set of instructions, and then computer will represent the output. The second main task of the computer is representation. So, after performing the manipulations according to given set of instructions, computer is supposed to represent outputs or to provide outputs to end users. So this is the definition of computer. Here I have used the word manipulation. There are various differences between the two words calculation. Actually, calculation and manipulation, this is not the same thing. There are certain differences. Calculation and manipulation. Basically, calculation is used for mathematical operations like plus, minus, multiplication, division, etc. For example, 23 plus 18. After adding these two numbers, you will get the result 41. Now this is information, this is data, and you performed the calculation, a mathematical operation plus. So basically calculation is more attached with mathematical operations, whereas the word manipulation, this is a very broad word, and we can use this word for various operations. For example, if you want to classify some data, then this is also called manipulation. For example, you have a list of students. Asad, the gender of Asad is male. Kaleem, again the gender of Kaleem is male. Then Sadia, gender of Sadia is female. Khan, gender of Khan is male. And then, for example, we consider another name, Robina. The gender of Robina is female. And if we classify mean we separate this data into two different groups on the basis of their gender. So we will get the list Asad, Kaleem, and Khan. In the other list, we will get the names Sadia and Rubina. So, on the basis of gender, you have classified this data. This was the input data, and computer performed an operation that is classification. So classification, this is not a mathematical calculation, but this is not mathematical calculation.
but this is a manipulation, rather this is a manipulation that computer performed on this input data, and after the classification you will get two separate lists on the basis of this gender. So in the first list we have the male students, and in the second list we have female or women students. So classification, you can consider another example for classification, for example, or manipulation, for example sorting. You want to sort data, or you want to sort a list. So after sorting, this list will become Asad, gender is male, and then Kaleem, gender is male, Khan, gender is male, and then Robina, gender is female, and then Sadia, gender is female. So we have arranged this list in alphabetical order. The arrangement of data in some proper order, this is called sorting. Now sorting is not a mathematical calculation, rather this is a manipulation. So calculation and manipulation, these are two different words. In the initial definition, or in the first definition, we use the word calculation, but computer is not only a calculating machine. तो फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क हुआ? तो कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी आपका करता है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है और बहुत एक्यूरेटली और फास्टली करता है। तो कुछ तो मतलब है कैलकुलेशन में, और इसलिए मैंने यहाँ पर जो है डेफिनेशन में जो वर्ड है वो कैलकुलेशन यूज़ नहीं किया बल्कि मैनिपुलेशन यूज़ किया है। तो मैं उसको ब्रॉड सेंस में लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम प्रॉब्लम्स में आपने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो। देयर आर सो मैनी ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म ऑन द डेटा। ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए दो एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जो और हम बहुत सारी एग्जांपल्स कंसिडर भी करेंगे आगे जब हम जाएंगे कोर्स में। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इन दो वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो समझाने के लिए ये दो ऑपरेशन लिए, एक क्लासिफिकेशन और एक सॉर्टिंग, ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली जो कैलकुलेशन है वो हम टोटली मैथमेटिकल कंसेप्ट में यूज़ करते हैं, या उसको हम उसका जो बैकग्राउंड लेते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड लेते हैं। और उसके लिए तो हमारे पास एक और रियल वर्ल्ड मशीन है हमारे पास, जिसको आप कैलकुलेटर कहते हैं। तो कंप्यूटर इज़ नॉट ए कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर इज़ नॉट ए कंप्यूटर। इन दोनों में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इंशाल्लाह हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो कंप्यूटर का जो सोल पर्पस है वो सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करना नहीं है। इसलिए मैंने ये जो फॉर्मल डेफिनेशन दी है कंप्यूटर की, इसमें मैंने जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ द मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन इज़ ए वेरी ब्रॉड वर्ड, and you can perform any kind of operation, or you can attach any kind of operation with this word manipulation। तो क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको कंप्यूटर सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जैसा आपके पास डेटा है, अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट की फॉर्म ली है, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा लिया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कंप्यूटर टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल डीएनए पैटर्न्स हैं, डिफरेंट डीएनएज हैं, और आप इस डीएनए पैटर्न्स में कोई सर्चिंग करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मतलब है उसके ऊपर, वो सर्चिंग करके आप डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जो आप सर्चिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे डीएनए पर, अब डीएनए बेसिकली क्या होंगे, डिफरेंट इमेज पैटर्न्स होंगे, डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। अब यहाँ पर जो डेटा है वो उसकी टोटली नेचर ही चेंज हो गई है। तो इसलिए मैंने कहा है कि कंप्यूटर जो है वो रियल लाइफ में
वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो सिर्फ कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हो रही होती, बल्कि हम रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अब आप जाते हैं आजकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जितने भी मेडिकल डायग्नोसिस हैं वो आप देखते हैं वो सारे कंप्यूटराइज हो रहे हैं। आपका आरएमआई फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं और लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नैरो सर्जन के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपकी जो स्पाइनल कार्ड है इसका मुझे जो है स्कैन चाहिए, उसकी मुझे एमआरआई चाहिए। तो आप एमआरआई मशीन में जो है वो क्या लेंगे, आपकी बैकबोन का जो है वो इमेज लेंगे, स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद जो आपके पास एमआरआई आएगी, उसके ऊपर जो है फिर वो डॉक्टर जो है ना डायग्नोसिस करेगा। तो अब वहाँ पर सारी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है। अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको कंप्यूटर जो सॉल्व कर रहा है, ये तो कोई कैलकुलेशन तो नहीं है कि आप मैथमेटिकल डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, मैनिपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। दीज आर some prominent characteristics of computer. First characteristic is speed. Next characteristic is accuracy. Third characteristic is reliability. The fourth one is storage. Next characteristic is versatility. And then consistency, communication, recalling, and cost reduction. These are some prominent characteristics of a machine, an electronic machine that is called a computer. First of all, we discuss about the speed. Dear students, you know that computer is a very speedy machine, and this machine is supposed to perform the operations at a very high rate. You know that the speed of computer is measured in the form of megahertz and gigahertz. So the speed of computer is very much high. It performs the manipulations at very high rate, at very fast speed, and usually the measuring unit of speed is megahertz, and now we are using gigahertz. जिस काम को आप फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन परफॉर्म करें, उस पर वो घंटों और दिन महीने लगाएंगे, तो कंप्यूटर उसको विद इन नैनो सेकेंड्स वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीड है। और बेसिकली जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इससे आपको एक आइडिया ये भी हो सकता है कि why we use a machine that is called computer. Why we use a machine that is called computer? हम आखिर इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? आप इवन के BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स होकर भी ये कोर्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपका एक कंपल्सरी कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आखिर क्या ज़रूरत है कंप्यूटर को यूज़ करने की? और सारे मतलब है लोग उसको स्टडी करते हैं, आखिर कोई तो उसका कोई मतलब है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कंप्यूटर को वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। हम स्पीड के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, बल्कि हमारी तो एक्सपेक्टेशन ही कंप्यूटर से यही है
जब भी आप कंप्यूटर, आपके जहन में ये वर्ड आता है कंप्यूटर, तो स्पीड उसके साथ बिल्कुल इस तरह समझ लें कि 100% उसके साथ इस तरह समझ लें को रिलेटेड है। यानी कंप्यूटर आप स्पीड के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा कंप्यूटर की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आप कहें that is the speed, and this is the most prominent characteristic of computer. Next characteristic is accuracy. Computer provides, basically I have explained that the computer is a machine that performs manipulations, and after performing the manipulation it is expected, this machine is expected to represent various results. Now every user expects from this machine that these results should be error free. तो जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है कंप्यूटर वो एरर फ्री होने चाहिए। तमाम यूज़र्स की, तमाम एंड यूज़र्स की जो कंप्यूटर को यूटिलाइज़ करते हैं उन सब की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो एरर फ्री होने चाहिए। तो लिहाजा कंप्यूटर के अंदर, और ये उनकी एक्सपेक्टेशन 100% ठीक भी है कि जो कंप्यूटर के रिज़ल्ट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एरर फ्री होते हैं। लेकिन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि बाज़ दफ़ा तो कंप्यूटर के जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें बड़े डेंजरस किस्म के यानी जो रिज़ल्ट्स भी सामने आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनमें एरर भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये सर हमें कह रहे हैं कि कंप्यूटर की ये जो सबसे बड़ा सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डैट इज़ द एक्यूरेसी, और कंप्यूटर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एरर फ्री होते हैं। ये कैसी बात हो रही है कि डेली लाइफ में तो हम अक्सर देख लेते हैं जो कंप्यूटर रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर होता है उसमें यूजुअली एरर्स भी होते हैं, बाज़ दफ़ा एरर्स भी होते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन के जब कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रिलाई करता है, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम डेवलप करता है डैट इज़ ए प्रोग्रामर। तो आपके पास डेटा है और प्रोग्रामर ने प्रोग्राम डेवलप किया और उस कंप्यूटर को वो प्रोग्राम फीड करेंगे तो इस प्रोग्राम के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो रिजल्ट्स में इनएक्यूरेसी का जो फैक्टर होता है वो बेसिकली यूजुअली या तो आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स होंगे, आपका जो प्रोग्राम है उसमें प्रॉब्लम होंगे, यानी वो जो आपका एल्गोरिदम है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, या आपका जो डेटा सेट है या डेटा है वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में जो है वो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। अदरवाइज़ कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक एरर फ्री मशीन है और जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है उसमें वो एरर्स का जो है वो एलिमेंट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिलायबिलिटी। तो क्योंकि रिजल्ट्स एरर फ्री होते हैं लिहाजा आप उनके ऊपर रिलाई करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, आप वो रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होता है कि कंप्यूटर ने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी मेडिकल डायग्नोसिस की, एमआरआई आप कराते हैं, अपनी बैकबोन का स्कैन करते हैं और डॉक्टर के सामने जब वो एमआरआई आती है तो वो उस रिज़ल्ट को ट्रस्ट करता है और उसकी बेस पर वो डायग्नोज करता है। उसको आइडिया होता है कि आपकी जो इस किसी भी ह्यूमन बीइंग की एमआरआई उसके सामने जब आ जाती है तो वो उससे डिसाइड करता है कि उसकी डिस्क्स में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो अगर वो कंप्यूटर जो है एमआरआई में अगर उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो फिर तो रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगा। कोई भी कंप्यूटर को मेरा ख्याल में यूज़ करने के लिए आमादा नहीं होगा, कंप्यूटर जो है वो एक यूज़लेस मशीन बन जाएगी। तो रिलायबिलिटी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कंप्यूटर का, और रिलायबिलिटी इसलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर के रिज़ल्ट्स हैं वो एरर फ्री होते हैं। अब आपके पास जो एमआरआई है
वो जब उसकी स्कैन होगी बैकबोन तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एरर्स जो हैं वो निगलिजिबल होंगे, तो जिसकी बेस पर वो हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट रिलायबल होगा, और उसी रिज़ल्ट की बेस पर ह्यूमन जो है वो डिफरेंट डिसीजंस परफॉर्म करते हैं। सो द कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल मशीन्स, यू कैन ट्रस्ट दिस मशीन, एंड on the basis of that trust you can perform various decisions, or you can drive various conclusions on the basis of the results that have been provided by the computer. अच्छा देखिए, मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी मशीन है, उसकी जो स्पीड है वो अनइमेजिनेबली बहुत फास्ट है, बल्कि हम इस तरह आजकल तो एक एजम्पशन है कि कंप्यूटर में के प्रोसेसर इतने फास्ट हो गए हैं कि बाज़ लोग समझ रहे हैं कि शायद कहीं ये स्पीड जो है वो अनलिमिटेड ना हो जाए। एनी हाउ ये एजम्पशन 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन या एक सपोजिशन या बाज़ लोग ये हाइपोथेसिस एक ड्रा कर लेते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इतनी फास्टली ग्रो कर रही है तो कहीं ये अनलिमिटेड स्पीड ना हो जाए। तो अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीडी है लेकिन उसके जो स्पीड की मतलब है आपने एक देखना है कि स्पीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन आप सॉल्व करें लेकिन जल्दी करें, तो उस जल्दी के उसमें अगर आपके रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आते तो स्पीड की वजह से फॉर एग्जांपल आप अपने रिज़ल्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ह्यूमन में एक ये मसला हो सकता है कि जब वो स्पीड के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें रिज़ल्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें एरर्स आते हैं और बाद में आप कहते हैं कि ये काम जल्दी करने की वजह से जो है ये रिज़ल्ट्स हमारे पास वो उस तरह नहीं आए जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इसमें एरर है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि कोई काम अगर स्पीड से करेगा तो वो उसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाएगा, और जिसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आएगा तो फिर अल्टीमेटली उसमें रिलायबिलिटी का मतलब वो तो फिर अनरिलायबल मशीन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो मतलब कंप्यूटर स्पीड के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा उसमें एक्यूरेसी भी होगी, और उस एक्यूरेसी की वजह से उसमें आप रिलायबिलिटी यानी उसमें रिलायबिलिटी का फैक्टर भी होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। आप हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी कंप्यूटर हो वो हाई रेट पर फास्टली कैलकुलेशंस परफॉर्म करे, एक्यूरेटली करे, दैट द रिजल्ट इट मीन्स द रिजल्ट्स शुड बी एरर फ्री, and on the basis of accuracy we shall trust this machine, and ultimately there will be a factor of reliability in this electronic machine. Next जो है हमारे पास है स्टोरेज। आप देखते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है आजकल वो कितनी ज़्यादा हो गई है। मेमोरी के बारे में भी एक एजम्पशन ये ली जा रही है कि आजकल तो मेमोरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं अनलिमिटेड ही ना हो जाए। तो बहरहाल ये एजम्पशन ठीक नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। स्टोरेज जो है कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। आप इसमें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आप जो है एक छोटी सी मेमोरी में आप मतलब है जिसकी साइज़ बहुत कम होती है। साइज़ मीन यहाँ पर मैं फ़िज़िकल साइज़ से ले रहा हूँ, जिसको आप इजीली अपनी मतलब पॉकेट में भी इवन के रख सकते हैं। तो फिज़िकल स्पेस वो बहुत फ़िज़िकल स्पेस रिड्यूस हो रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो अनइमेजिनेबली इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसमें आप लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ह्यूज डेटा आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरी इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। सो द स्टोरेज इज़, आजकल आपको पता है कि जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है वो टीबीज़ में हो गई है। पहले हम केबीज़ की बात करते थे, किलो बाइट्स, एंड देन एमबीज़, मेगा बाइट्स, एंड देन गीगा बाइट्स, जीबीज़, और अब जो है जो हमारे पास कैपेसिटी आ रही है वो टेराबाइट्स में आ रही है, टीबीज़ में, और बल्कि बात इससे आगे भी जा रही है। तो बहरहाल स्टोरेज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट characteristic of the computer. Next characteristic is the versatility. Computer is a versatile machine. Computer can perform any kind of tasks. तो कंप्यूटर के ऊपर आप जो है मतलब है उस आप इस तरह समझ लें कि इसके अंदर जो है वर्सेटिलिटी या काफ़ी डाइवर्स किस्म के जो है ना हम
प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस मशीन के ऊपर। तो ये एक वर्सटाइल मशीन है एंड दिस हैज़ द कैपेबिलिटी टू सॉल्व वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वेदर दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेज और दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग साइंसेज और दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, you want to learn some language, you can use the computer. Similarly, you can use the computer for mathematical operations. You can perform, you can use computer for game playing. So this is a very versatile kind of machine and you can perform any kind of operations on this machine. Next is consistency. What does it means consistency? Consistent, तो कंप्यूटर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मोस्टली जो है वो कंसिस्टेंट्स होते हैं। कंप्यूटर एक कंसिस्टेंट मशीन है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि इसका जो बिहेवियर है वो यूजुअली स्टीरियोटाइप किस्म का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स के साथ इसको समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोग्राम और उसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं, तो ये प्रोग्राम आप इस डेटा के ऊपर जब भी रन करेंगे सेम रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। एवरी टाइम आपके पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसके अंदर जो एक्यूरेसी का लेवल होगा वो सेम होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये कंसिस्टेंट मशीन है। इस तरह नहीं है कि आज रिज़ल्ट्स उसने ठीक दिए हैं और कल गलत दिए हैं और परसों फिर कुछ और किस्म के रिज़ल्ट्स दिए और उसमें फिर एक्यूरेसी का जो लेवल है वो चेंज होता रहे। तो फिर तो वो जब इस तरह का बिहेवियर उसका हो तो फिर तो रिलायबिलिटी का फैक्टर भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अब ये किस किस्म के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। इस दफ़ा तो इसने 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट्स दिए, तो आया कि नेक्स्ट टाइम क्या वो रिज़ल्ट उसी तरह उस लेवल पर, यानी उसका एक्यूरेसी लेवल वही होगा या नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो कंप्यूटर है वो एक कंसिस्टेंट मशीन है। अच्छा, अगर अभी इसने रिज़ल्ट्स, आपने ये प्रोग्राम रन किया इस डेटा सेट के ऊपर और आपके पास जो रिज़ल्ट्स आए वो इनवैलिड थे, तो ये नहीं हो सकता कि अगली दफ़ा जो है ना बाई चांस वो वैलिड रिज़ल्ट्स आ जाएं। अगर अभी इनवैलिड आए हैं तो फिर हर दफ़ा ही इनवैलिड आएंगे। तो ये इसलिए मतलब कंसिस्टेंसी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है कंसिस्टेंसी को आप समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ। कंप्यूटर मोस्टली दिस इज़ वेरी वेल सूटेड मशीन फॉर रेपिटिशंस। किसी भी ऑपरेशन को अगर आपने रिपीट करना हो तो उसके लिए जो कंप्यूटर है दिस इज़ वेरी दैट इज़ वेरी वेल सूटेड मशीन। अगर आपने एक काम को 10 दफ़ा करना हो, 20 दफ़ा करना हो, 100 दफ़ा करना हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा दफ़ा करना हो, तो जो क्वालिटी फ़र्स्ट टाइम होगी वही क्वालिटी लास्ट टाइम भी होगी। तो वो क्वालिटी के अंदर जो है वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो रेपिटिशंस से रिलेटेड जो है जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस प्रिंटर पर कोई 1000 पेजेस को प्रिंट कर रहे हैं तो जो क्वालिटी फ़र्स्ट टाइम होगी वही क्वालिटी जो है वो लास्ट पेज की भी होगी। तो कंसिस्टेंटली जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये और बात है कि अगर आपकी वो हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो जाए, यानी आपका टोनर ख़त्म हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है तो वो और बात है, लेकिन अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो वो कंसिस्टेंटली आपको हाई क्वालिटी रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। कंसिस्टेंसी को आप समझने के लिए और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर एक रूल के तहत काम करता है, डेट इज़ कॉल्ड गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। द गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो चीज़ इसमें इनपुट करेंगे वही चीज़ आउटपुट देगा। गार्बेज को डालेंगे, गार्बेज इनपुट करेंगे, गार्बेज ही आपको मिलेगा हर दफ़ा ही। और अगर आप वैलिड एक एक्यूरेट प्रोग्राम बनाएंगे, आपका डेटा वैलिड होगा तो आपको रिजल्ट्स भी वैलिड मिलेंगे। तो उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी का एक एलिमेंट होता है। कंप्यूटर से की जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है डेट इज़ द कम्युनिकेशन। दिस मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट विद द एंड यूज़र्स। कम्युनिकेशन को आप समझने के लिए इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप इनपुट्स करते हैं
तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके पास आउटपुट्स आते हैं। और मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर है उसका जो मेन टास्क है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो जब तक आपको रिज़ल्ट्स रिप्रेजेंट नहीं होंगे, वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन कैसे अचीव करेंगे। तो कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट ये है कि वो जो यूज़र है उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है एट वेरियस लेवल्स, और उसके साथ जो है मतलब इस तरह की मशीन नहीं है कि गूंगी बहरी के हमें कोई समझ ही नहीं आ रही कि अंदर क्या हो रहा है। मतलब उसके जो अगर आप देखेंगे तो आपका एक डायलॉग पार्टनर है, आपका डायलॉग पार्टनर के तौर पर आपके साथ काम करता है। और फॉर एग्जांपल अगर उसमें ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो अक्सर आप देखते हैं कि वो डायलॉग मेन्यू आपके ऊपर वो डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें आपसे वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपको रीज़न बताता है, फिर आपको कहता है कि या तो आप ओके का बटन प्रेस करें या कैंसिल करें। तो कोई इस तरह की मशीन नहीं है कि गूंगी बहरी के आपको कोई समझ ही ना आए कि अंदर क्या हो रहा है और आप उसको समझ ना पाएँ। बहरहाल एक ऐसी मशीन है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूज़र के साथ जो है कम्युनिकेट करता है। रिकॉलिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट फीचर। रिकॉलिंग मीन whenever you store large volumes of data in this machine, you can very easily recall the desired data, or you can retrieve required information from the large volumes of data very easily. For this purpose you will use various searching algorithms, and computer will easily recall the required data or the required information. You can retrieve any kind of information from the large volumes of data. Millions and the billions of the data items अगर कंप्यूटर में सेव पड़े हुए हैं उसकी मेमोरी में, आपने जब भी उनको स्टोर किया हो और जब फिर फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत हो, वेरी इजीली आप उनको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ह्यूमन में देखें अक्सर रिकॉल का प्रॉब्लम होता है, हमारे जहन में बहुत सारी बातें पड़ी तो होती हैं, लेकिन जब यूज़ करने का वक्त आता है, इस्तेमाल करने का वक्त आता है, तो अक्सर हमें बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। जिस तरह आप अभी एग्ज़ाम में सारा सब्जेक्ट तैयार करके बैठे हैं और पेपर में बैठते हैं तो वो रिकॉल का एक प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारी बातें आपको याद नहीं आती थी। ह्यूमन में एक प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर में ये जो है, कंप्यूटर इसमें जो है बड़ी वेल सूटेड किस्म की एक मशीन है कि उसको रिकॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर डेटा उसके पास पड़ा है तो आप उसके ऊपर वेरियस एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करके वेरी इजीली आप उससे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। सो रिकॉल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर। कास्ट रिडक्शन, अच्छा देखें, कास्ट रिडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बेसिकली देखें, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली है सॉफ्टवेयर, लेकिन इसको मैं फिर आगे एक्सप्लेन करूँगा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर के लिए डेवलप कर लेते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को फिर आप जो है एक सॉफ्टवेयर की एक लाइफ होती है, उस मतलब एक लाइफ टाइम होता है, और वो जो है फिर उसमें वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते रहते हैं वेरी सक्सेसफुली, और आपको वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बार बार जो है किसी, जैसा मैं आपको समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई काम आपने किसी ह्यूमन के ज़िम्मे लगाना है और आप उसको कहते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, कोई एनी ह्यूमन है, तो वो आपको चार्ज करेगा उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। और अगर वो ऑपरेशन आपने दोबारा परफॉर्म कराना हो तो वो दोबारा चार्ज करेगा, फिर तीसरी दफ़ा चार्ज करेगा। जब भी आप उसको ये टास्क असाइन करेंगे हर दफ़ा आपके ऊपर वो चार्जेस आएंगे। लेकिन मशीन में ये होता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है और उस सॉफ्टवेयर, आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, आपके पास डेटा भी है, तो आप उसे जब भी यूज़ करते रहें तो वो कास्ट का जो एलिमेंट है, यानी वो कास्ट इफ़ेक्टिव मशीन हो जाती है। आपके ऊपर वो कास्ट बार बार नहीं आती जो कि ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट से आपके ऊपर कास्ट आती है, या ऑपरेशंस को आप जब मैनुअली परफॉर्म करते हैं तो मैनुअल परफॉर्म करने से वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है सिस्टम। तो कंप्यूटर उस कास्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर लेता है। एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए या एक दफ़ा डेटा कलेक्शन हो जाए तो आप उसे
फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एनी पर्पस आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उससे जो है फिर आपकी जो कास्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा आप देखें कास्ट रिडक्शन में यह है कि कंप्यूटर की कास्ट भी आहिस्ता आहिस्ता इस मशीन की भी कास्ट रिड्यूस हो रही है। आजकल मार्केट में जो है मतलब जो किसी ज़माने में हम बात करते थे कि वो कंप्यूटर की जो कास्ट होती थी बिलियंस एंड द ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स में होती थी, उसको परचेज करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी काफ़ी मुश्किल होता था। आजकल वो कास्ट भी रिड्यूस होती जा रही है। विद लेस कास्ट आप बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स ले सकते हैं और उनके ऊपर वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्सटाइल मशीन है, वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो कास्ट रिडक्शन को आप इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दीज आर दी वेरियस फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, मैंने जब डेफिनेशन कर रहा था तो मैंने दो इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किए थे, एक डेटा और दूसरा जो मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया था वो इंफॉर्मेशन था। बेसिकली डेटा इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। बेसिकली दिस इज़ द लैटिन वर्ड एंड दिस हैज़ बीन derived फ्रॉम अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड datum. Datum mean a single fact. A single fact. And the collection of facts, उसकी जो प्लूरल है वो है डेटा. Collection of facts is called डेटा. तो जब आपके पास बहुत सारे डेटा इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेटा आ जाएगा. And basically data is the raw form of facts. Raw form of the facts. डेटा जो है वो हमेशा रॉ फॉर्म में होता है. अच्छा, रॉ फॉर्म का क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ. यानी जिसका फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे थे तो आपने एक एडमिशन फॉर्म फिल किया था. उसके ऊपर हमने आपसे नेम, फादर नेम, आपका जो है एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछी थी, फ़ोन नंबर, वेरियस काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स हमने आपसे लिए थे. आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स थी, आपने क्या किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमने एडमिशन फॉर्म के ऊपर ली थी. तो ये जो आपने डिटेल हमें प्रोवाइड की थी, दिस इज़ द रॉ फॉर्म. बेसिकली रॉ फॉर्म वो होती है जिसके ऊपर कोई अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं हुई, तो उसको हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रॉ फॉर्म. तो डेटा बेसिकली आपका जो है वो रॉ फॉर्म में होता है और जब आप उसके ऊपर वेरियस मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर देते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग वेरियस मैनिपुलेशंस द डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. सो आफ्टर performing various manipulations data is converted into information. तो इसका मतलब, अच्छा फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल फॉर्म होगी डेटा की. यूजफुल फॉर्म ऑफ द डेटा, यूजफुल form of data. For example, when you record the facts on admission form of college, then this is data. As I have already told you, when you record the facts on some admission form, then
This is data. You record your name, your father name, your age or date of birth, your ID card number, the district from where you belong, address, and then the marks. Now, when the college processes these admission forms to generate a merit list, then this merit list will be an information. So, when you process the facts, after the processing, you get the useful form of data. Like when you process the admission forms, you get the merit list, then this will be the information. Or you want to know which students belong from district Peshawar, so district wise classification of admitted students will also represent an information. तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब आप डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, यूज़फुल फॉर्म बन जाती है, और बिफोर प्रोसेसिंग वो रॉ फॉर्म होती है, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। Data processing cycle involves following steps. The very first one is input. Second is processing. Third one is output. And the last one is storage. Input means when we feed data into machine using some input devices, then this step is called input. Next step is processing, when the processor, that is CPU, processes the data, then this step is called processing. It must be noted that when we feed data into machine using some input devices, then that data is stored in some temporary memory that is also called RAM, that we will study in detail in some later lectures. In the step of processing, this processor CPU fetches data from RAM and processes it. And we have already discussed that after processing, we get useful information. That information will also go into temporary memory that is called the RAM.
So for processing we use the processor, and after the processing we get the results, that is also called the information, that will also go into some temporary memory, that is called the RAM. Next step is output. Output means representation of information using some output devices. So the output devices fetches information or the results from the RAM and displays that information on some output devices. Then this step is called output. And the very last step is storage. Storage means when we want to store some information into some permanent memory for future use, then this step is called storage. Storage represents the storage of information on some secondary storage devices for future use. So the data processing cycle involves 4 steps: input, processing, output, and storage. The formal definition of computer was: the computer is an electronic machine used for manipulation and representation of facts. So processing deals with manipulation and output devices deal with representation of facts. But before processing, you are supposed to feed data into machine using some input devices, and if you want to retain the information for future use, then you will have to store that information in some permanent storage devices that are also called secondary storage devices. Then this step is called storage. So we have 4 steps: input, processing, output, and storage. When you retain the information in some storage devices, you can use that information for future use. Then this is called feedback. When we use the output as the input at some later stage, then this is called a feedback. So this is the data processing cycle. If you note that we are using various devices. For example, during input step we were using the input devices. During the processing we were using the processor and some temporary storage devices. Then during output we were using the output devices, and for storage we were using the secondary storage devices. These physical devices that we will be using during these steps, these are called hardware. And to perform these steps on an electronic machine, we will have to issue certain instructions
So some instructions will be related to input, some instructions will be related to processing, some instructions will be related to output, and some instructions will be related for storage. When we issue these instructions to computer, then computer converts data into information, and to display this information we use output devices. To feed data into computer we use some input devices, and for processing we use CPU. This CPU fetches the data that comes from input devices from RAM, and then again stores the results into this RAM, and for future use we move the information from RAM to some secondary storage device. So these are the devices that we will be using beside these set of instructions. So these physical components, storage devices, RAM, input devices, output devices, these are called processor, these are called hardware. And the set of instructions given to computer to perform various operations, this is called software. So software is related with the programs, collection of programs that are responsible for the processing of data to provide some useful information. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर जो डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है उसको आपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया है, और फ्यूचर के लिए आप उसमें आप मेरिट लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रोग्राम लिखना होगा, एंड देन दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. So we can say that software is we can say that software is the set of instructions given to computer to perform various tasks, and software represents the computer programs, and hardware are the physical components of the computer. These are called hardware. Now we study the difference between hardware and software. Hardware and software. Software deals with the set of instructions given to computer. Hardware deals with the physical components of the computer. Software are used to tell computer what to do, and hardware are used to perform the actual
activities. For example, you want to get output, then the actual activity for producing the output, we will be using output devices like printer or screen. So hardware are used to perform the actual activities. Software do not wear out. Software do not wear out, whereas hardware, these wear out. This is the third difference. Next difference is these are intangible components, whereas hardware is the tangible components of computer. Software is debugged in case of errors, whereas hardwares are repaired in case of malfunctioning or errors. Softwares are reinstalled or installed सॉफ्टवेयर्स को आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या रीइंस्टॉल करते हैं अगर उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशंस हो गई हैं. बट हार्डवेयर्स आर रिप्लेस्ड. अगर हार्डवेयर में कोई डैमेज हो गई है या उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें आप फिज़िकल कंपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. सो दीज आर इंटेंजिबल मीन सॉफ्टवेयर को आप कभी टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि क्योंकि फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं तो ये टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान हमने डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर.